Hello everyone. Today's our topic is tense. They are divided into three parts. First one present, second past and third future. They are subdivided into four heads. They are indefinite, continuous, perfect and perfect continuous tense. ये जो चार पार्ट्स हैं ये हर पार्ट के साथ होते हैं. इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. वैसे ही पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सेम एज इन फ्यूचर टेंस. सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक लेंगे प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का भी जो सब डिवाइडेड है उसमें फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट मीन्स indefinite tense. We use this tense form to order. हम इस टेंस का यूज किस के साथ करते हैं? Things that are always true, situations that exist now and will go on indefinitely for general time. Third one, habit or things that happen regularly. Fourth one is universal truth. These four things are most important in this tense. For example, sun rises in the east. This is what ये क्या है? This is called universal truth. ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता. He always comes here on Sunday. Here on Sunday. Always. रोज की हैबिट में है. Seema and Renu are girls. I get up at 6 every morning. Every morning. This is also habit. उसमें सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं. इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस. व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर वन थिंग. व्हाट इज सिंगुलर, व्हाट इज प्लूरल? Singular is when we use he, she, it and all noun in singular way. Plural, you, we, they, I, you, we, they and all singular noun or pronoun. ये तो pronoun हो ही गए हैं तो noun भी उसके plural noun भी आ गए. जब वन थिंग हमें याद रखनी है कि जब कभी भी हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करते हैं तो इट ऑलवेज गो विथ सिंगुलर और इट टेक्स ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट. जब सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब उसके साथ ना एस और ना ई एस का यूज होता है तो वो हमेशा किसके साथ गो करेगी? वो हमेशा किसके साथ जाएगी? इट ऑलवेज गो विथ प्लूरल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर. ही राइट्स a letter. Here are two examples. Subject is different, main verb is same, object is same. But what is different in main verb? Main verb के अंदर different क्या है? Here I write only WRITE. Here WRITES. Why? Because subject is different.
when we use I, you, we and they, we have to use only verbs first form. No need to use s or es in the main verb. When I use he, I have to use verbs first form plus s or es in the main verb. Example, he, she, it. This is the most important part of this tense. Next, इसी के अंदर हम आगे जाएंगे. When we use do or does. When we use do or does. Do is always go with plural and does always go with singular. And mostly it is used with negative form. Mostly it used with negative form. For negative sentence, subject plus do, does plus not plus V1 plus, right? How? I do not learn chapter. They do not finish their lunch. She does not play football. One more. He never tells a lie. He never tells a lie. These four sentences are example of negative sentence. I always go with do. They always go with do. She always go with does. He always go with do. But here we do not use do. Why? क्योंकि हमने never का यूज किया है, तो उसकी never आते ही हमने क्या कर दिया, उसकी verb के अंदर s या es का यूज कर दिया. और never is self negative sentence. Is this clear? Yes. Next is interrogative sentence. What is interrogative sentence? WH plus question word plus do does plus subject plus V1 then question mark, or do does plus subject plus V1 plus. This is the formation of interrogative sentence. Does he read a book? Does he read
a book. Why does she come here? Why does she come here? Next sentence. Do I give you a pen? Do I give you a pen? Look at this sentence. अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि मैडम ने अभी तो बोला था कि जब V1 के साथ सिंगुलर और प्लूरल के अंदर क्या यूज करते हैं, S और ES. One thing you have to remember, when we use do or does or did in any sentence, when we use do, does and did in any sentence, no need to use verbs first form or verb second form. जब कभी भी हम डू डज का यूज ओनली इन प्रेजेंट टेंस में होता है, जब इनका यूज करते हैं तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, उसके साथ ना एस लगेगा और ना ES लगेगा. वैसे ही डिड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं और जब भी डिड का यूज हम करेंगे नो नीड टू यूज ED इन द मेन वर्ब. ओके, तो ये चीज यहाँ पर एक क्लियर कर देनी है. डू एंड डज के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES का यूज नहीं होता है. डू ऑलवेज यूज विथ प्लूरल, डज ऑलवेज यूज विथ सिंगुलर. तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ नेगेटिव सेंटेंस? दो तरह से नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वो बनेगी. फर्स्ट WH प्लस क्वेश्चन वर्ड, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. WH मीन्स WH इट इज कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड. WH का वर्ड ही क्या कहलाता है? क्वेश्चन वर्ड कहलाता है. फर्स्ट सेंटेंस, डज ही रीड अ बुक? वी यूज डज हियर, नो नीड टू यूज S और ES. Why does she come here? Does आ गया तो वो की वही फॉर्म आएगी, कोई फॉर्म नहीं आएगी. मैं ये चीज इसलिए आपको बार बार रिकॉल कर रही हूं क्योंकि इन्हीं पर हमारे आंसर्स डिपेंड होते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स पे. देन डू आई गिव यू अ पेन? आई, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये जो हैं वो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस, ये तीन के अंदर इस सेंटेंस में, इस टेंस के अंदर इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, अपन ने जो अभी पढ़ी. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि जब यूनिवर्सल और जनरल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल एंड जनरल ट्रुथ, जब यूनिवर्सल और जनरल ट्रुथ होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है, उसके अलावा कोई टेंस वहां पे काम नहीं आती है. फर्स्ट सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट. water boils at 100 डिग्री सेल्सियस. ये क्या हो गया, ये सेंटेंस तो हो गए. द अर्थ मूव्स राउंड द स्टार शाइन एट नाइट. ये सारे यूनिवर्सल और जनरल ट्रुथ हो गए सेंटेंस. उसके बाद आता है टू मेक स्टेटमेंट्स और जनरल नेचर. टू मेक स्टेटमेंट्स
and जनरल नेचर। इसके बाद ये आता है, तो स्टेटमेंट्स एंड जनरल नेचर दोनों डिफरेंट है। वी हेयर विथ अवर ईयर्स, वी हियर विथ अवर ears. Second, the rose smells sweet. The rose smells sweet. General nature. Second one is general nature. Statements is first one. अब देखो यहाँ पर जो हमें एग्जाम के अंदर फिलअप करने होते तब किस बात पे हमें ध्यान रखना हो, ये लिखा हुआ आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा लिखा हुआ। वी डैश विथ अवर ईयर्स, ब्रैकेट में आ गया HEAR, सुनना। ठीक है, किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं, तो सुनना इज एक्शन वर्ब, इट इज कॉल्ड मेन वर्ब। द रोज डैश स्वीट, सिंगल, स्मेल्स। जब ये जो वर्ड्स हैं ये स्टेटमेंट्स और जनरल आएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इनके साथ वही रूल फॉलो होगा जो हमने एस और ई एस वाला रूल फॉलो किया था। वी आने से क्या हो गया, एस और ई एस सेंटेंस में नहीं लगा, और रोज आने से क्या लग गया, सेंटेंस में एस और ई एस लग गया। देन इन न्यूज़पेपर हेडलाइन, इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस किस में आती है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। टू मर्डरर्स, टू escape, two murderers escape, दो मर्डरर्स क्या हो गए, भाग गए। तो ये जो न्यूज है वो हमेशा किस में आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। उसके बाद है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, टू एक्सप्रेस What is habitual action? क्या होती है habitual action? He often comes late. ठीक है, उसकी आदत में है लेट आना। एक और सेंटेंस ले लो, हरी नेवर गोज ऑफिस लेट, हरी नेवर गोज ऑफिस लेट। अब देखो इन सेंटेंस को पहचानना कैसे, इनके साथ आइडेंटिफिकेशन भी है। ऑफन, नेवर, ये क्या बता रहा है हमें, ऑफन, नेवर, ये सारी चीजें हमें बता रही है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, बिकॉज ये रूटीन का वर्क है, इनका रूटीन का काम है। इसलिए ही है, कम्स आ गया, हरी है, गोज आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज हुआ, एस और ई एस सेंटेंस के अंदर यूज हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट साइंटिफिक ट्रुथ। साइंटिफिक ट्रुथ क्या हो गया, ये अभी हमने यूनिवर्सल ट्रुथ और जो जनरल ट्रुथ पढ़ा, वो जनरल ट्रुथ भी किस में आ जाएगा, कभी साइंटिफिक ट्रुथ के अंदर हम उसको ले सकते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री -0 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको उसके सेंटेंस को उसमें भी ले सकते हैं। टू नैरेट डिफरेंट एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टू नैरेट different action at the time of
speaking. It means to narrate different action at the time of speaking. When the door opens, when the door opens, many people enter the hall. When identification, the door singular opens, doors होता तो क्या हो जाता, इधर s और es का यूज नहीं होता. अब टू नैरेट डिफरेंट एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं किसी डिफरेंट एक्शन को बोल के बता रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा. देन है टू डिस्क्राइब प्री प्लान ट्रैवल. टू डिस्क्राइब pre-planned travel of near future which is based on certain schedule. कैसे, we leave for Jaipur at 8 and reach there at 9. जब टू डिस्क्राइब प्री प्लान, जब हमें अपने प्री प्लान को डिस्क्राइब करना है ट्रैवल ऑफ नियर फ्यूचर, आने वाले समय में, विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन शेड्यूल, उसका कुछ शेड्यूल होगा, उस पर जब डिपेंड करेगा तो किसका यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का. वी लीव फॉर जयपुर एट 8 PM, हम जयपुर 8 बजे छोड़ देंगे. एंड वी लीव फॉर जयपुर एट 8 AM एंड रीच देयर 9. ठीक है. नेक्स्ट है वी स्टे देयर फॉर 2 days एंड देन लीव फॉर कोटा. वी स्टे देयर 2 days and leave for कोटा. वहां 2 दिन ठहरेंगे, फिर हम कोटा के लिए निकल जाएंगे. तो ये प्री प्लान जो है वो किस में आएगा, नियर फ्यूचर प्री प्लान सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा. उसके बाद है देन हिस्टोरिक इवेंट्स. हिस्टोरिक इवेंट्स क्या हो गया, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, इंडिया ने चाइना को युद्ध में हरा दिया, ये सारे क्या हो गए, हिस्टोरिक इवेंट्स हो गए. तो ये भी हिस्टोरिक इवेंट्स भी किस में आएंगे, हिस्टोरिक इवेंट्स भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे. इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट. यस. एक और सेंटेंस ले सकते हैं इसमें हम, नाउ अकबर कॉल्स बिरबल एंड आस्क. नाउ अकबर कॉल बिरबल एंड आस्क. तो ये सेंटेंस है पास्ट का,
लेकिन हम उसे नाउ के साथ ऐड कर रहे हैं, तो अब वो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर उसका यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद हाउ टू शो फ्यूचर टाइम यूजिंग व्हेन। टू शो फ्यूचर टाइम, टू शो फ्यूचर टाइम यूजिंग व्हेन। फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए कौन सा वर्ड, अगर व्हेन साथ में आता है, आई शैल डू इट व्हेन ही कम्स, आई शैल डू इट व्हेन शी कम्स। ये क्या हो गया, फ्यूचर, टू शो फ्यूचर टाइम यूजिंग व्हेन। व्हेन के साथ जब हमको फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करना है तो किसका यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। व्हेन आई फिनिश द लेटर आई विल गिव इट टू यू। व्हेन आई फिनिश द लेटर when I finish the letter, I will give it to you. Right? तो ये एक और इम्पॉर्टेंट इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा किस में आएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। कैसे, ओबे योर एल्डर्स, पोस्ट दिस लेटर। तो ये सारे सेंटेंस किस में आएंगे, आंसर इनके उसमें आएंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक, प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉपिक जो है ये यहाँ पे फिनिश हुआ। इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब कभी भी इसके फिलअप हम प्रैक्टिस में लेते हैं या एग्जाम में करते हैं, या हमें अब ये पूरा टेंस मैंने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया, लेकिन कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं चला होगा, सिर्फ इतना पता चला होगा कि सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगता है, प्लूरल के साथ एस और ई एस नहीं लगता है। लेकिन नहीं, इतना लर्न हो गया वो भी बहुत है, लेकिन इसके साथ ये सारे जितने भी हमने रूल्स पढ़े वो लर्न नहीं हुए, नहीं याद रहा, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है। और वो शॉर्टकट क्या है कि इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है। क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। उस आइडेंटिफिकेशन को अगर हम लर्न कर लें तो हम कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को नहीं बोल सकते। तो कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन होती है, हम रीड करें उसको। ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, एवर, नेवर, सेवरल टाइम्स, usually, generally, occasionally, daily, weekly, monthly, fortnight, yearly, every year, day, night, week, month, once, twice, thrice, several times, a day, a week, a month, a year, on Sunday। ये सारी इसकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। अगर ये आइडेंटिफिकेशन हमें लर्न है तो हम कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को गलत कर ही नहीं सकते हैं। सो गाइज, होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ सेकेंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।